Okay, very good morning, everyone. So, till the last class, we have learned some introduction about the circle, how to find the radius, how to find the diameter of a circle. So, till now, whatever we have learned, if anyone having any doubts, kindly type the question number in chat. मैसेज में चैट में जिसको भी डाउट्स है सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखें कि दिस क्वेश्चन नंबर you not understood or this topic you not understood. So quickly everyone just write down. If you don't have, you can write as like IUC don't have any doubts. Okay, so you can just write you don't have any doubts. But if you have, you can just ask the doubts. The next topic which we have is to find the circumference of a circle. Okay, and some interior and exterior of a circles. Okay, Isa Kumari also don't have any doubts. Next topic what we are going to learn is how to find circumference of a circle. If there is a circle and you want to find the circumference of a circle, then how you can find out? So to understand about the circumference, first you need to understand one relationship between the circumference, diameter and radius of a circle, which I don't think you have in your syllabus, but still you should aware about that relationship so that it will help you in your further upper classes. Okay, so suppose I am taking one of the circle first. So this is one of the circle I am drawing. Okay. Suppose this is the center of the circle or origin of the circle. This is the radius. If you extend this will be diameter. Okay, and this is the circumference. Okay, so here to find out the circumference of a circle, one formula is there which is 2 into pi into radius. The formula of finding the circumference of a circle is equal to 2 into pi into radius. So this is the most important thing is to understand how this pi into radius came, and the value of pi we used to write as like 22 by 7. इसका वैल्यू हम लोग जो लिखते हैं ये 22 by 7 लिखते हैं, and this we used to put the value of pi in everywhere. The value of r it may be given, and you just need to put the value of r and the value of pi as 22 by 7, and then you can find out the circumference of a circle. तो अगर सपोज ये एक सर्कल है और इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, एंड इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द circumference of this circle, means the length of this circle, then how you can find out is just you need to multiply by 2 times the radius. Okay, so 2 times the radius means what? 2 times the radius means, we know 2 times radius means the diameter only. Okay, so we can say that sometime if the value of diameter is given, so very simply we can say is pi into diameter. So this is the basic relationship between the circumference of a circle and diameter is that whenever you will divide the
length of the circle, that means the circumference of the circle, by the diameter d, means that this length, you will always find the value as 22 by 7. 22 by 7 ही आपको हमेशा मिलेगा, जिसका मतलब होता है पाई। और इसी फॉर्मूला से, ये कंसेप्ट से ही हमारा जो है ये दो फॉर्मूला आया है। वन इज टू फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, another is to finding the circumference of the circle when diameter is given and when radius is given. You no need to understand, you no need to remember these all things. I am explaining this for your understanding, ताकि आप फॉर्मूला अच्छे से समझ सको। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि आप मान लो एक इतना बड़ा सर्कल लेते हो, अगर इतना बड़ा सर्कल लेते हो और उसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मींस द लेंथ ऑफ द सर्कल है, तो वो लेंथ ऑफ द सर्कल आप अगर लिखते हो और डायमीटर ऑफ द सर्कल लिखते हो, अगर लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करते हो तो हमेशा जो आंसर होगा वो 22/7 ही आएगा। वो छोटा सर्कल के लिए भी आएगा, चाहे इतना बड़ा सर्कल लो या इससे भी बड़ा सर्कल के लिए भी अगर आप लो, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट को अगर आप डायमीटर का मेजरमेंट से डिवाइड करते हो तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल कम 22/7 ओनली और पाई ओनली। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 22 को अगर 7 से डिवाइड करते हो, सो हम लोग को पता है 7 हाउ मेनी टाइम्स 3 7 are 21, ओके, सो 1 10, देन 7 1 are 7, ओके, सो 3 0 4, तो 3.14 के बराबर होगा, या तो 22/7 दैट मींस पाई, दैट मींस 3.14। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी सर्कल, चाहे इतना बड़ा हो या इससे छोटा सर्कल लो या इससे थोड़ा सा बड़ा लो, आप जब भी ये सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे डायमीटर से, ये सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे डायमीटर से, तो आप पाएंगे द आंसर विल कम एज 3.4 ओनली, एंड दैट मींस 22/7, एंड दैट मींस द वैल्यू ऑफ पाई। और उसी वैल्यू से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। दैट फॉर्मूला इज लाइक दिस, कि हम लोग जब भी सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर करते हैं तो ये पाई आता है, तो हम लोग का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर हो जाएगा। तो जब अगर डायमीटर दिया हुआ रहता है तो आप सिंपली पाई मतलब 22/7 को मल्टीप्लाई करके आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। और हम लोग को पता है डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो हम लोग इसको जब रेडियस दिया हुआ रहता है तो इसको पाई इंटू 2 इंटू रेडियस, दैट मीन्स सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू पाई आर। तो इस तरह से बोला जाता है द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 इंटू पाई आर, पाई इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये इतना डीपली आप लोग का सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस फॉर्मूला केम। तो जब डायमीटर दिया हुआ रहता है डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या तो पहले अगर रेडियस दिया हुआ, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पहले रेडियस निकालना है, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी फॉलो करोगे। तो दीज आर द 2 फॉर्मूला टू फाइंडिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो अभी इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहता है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज दिस, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज दिस। तो जैसे दिया हुआ रहता है पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है, डायमीटर जो भी दिया रहा है वो पुट करना है, रेडियस जो भी दिया हुआ है वो पुट करना है, और उसके बाद हमें उसका आंसर निकालना है। सी हाउ 22/7, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 22/7 इसी तरह से कि अगर मान लो आपको मैं एक कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट देता हूं या एक सर्कल देता हूं इस साइज का, तो उसका सरकमफ्रेंस आप मेजर करोगे, ठीक है, द लेंथ ऑफ द सर्कल, उसका वैल्यू जो होगा वो लिखोगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर सर्कल का डायमीटर मेजर करोगे और वो वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो सपोज सरकमफ्रेंस हमारा जो है 44 आ गया, ठीक है, तो सपोज सरकमफ्रेंस जो है 44 सेंटीमीटर आया, ये टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल आया। अब आप अगर इसका डायमीटर मेजर करोगे तो आपको मिलेगा
14. ओके, आपको इसका जो डायमीटर का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 14. तो आप इसको अगर कैंसिल आउट करोगे, सो यू विल सी 7 2 आर 14, 22 आर 44. सो 22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 7. तो हमेशा इसका जो रिजल्ट होगा वो 22/7 ही आएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा सर्कल का ले लो. और इसी तरह से जो रिलेशन है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर का, ये हो जाता है 22/7. और 22/7 का मतलब होता है पाई. हम लोग उसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है. और इसी तरह से सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज पाई. सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, ये डायमीटर को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई इंटू डायमीटर. तो एक तो फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का ये है जब डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ रहता हो, ठीक है. और एक वैल्यू ये है, हम लोग को पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस. तो यहां पे सिंपली हम लोग अब डायमीटर का जगह पे 2 टाइम्स रेडियस पुट कर दिए, तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस. तो इस तरह से हमारा जो ये फॉर्मूला है ये डिराइव होता है, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर कि आपको डायमीटर दिया हुआ रहेगा, सरकमफ्रेंस निकालना है, या तो रेडियस दिया हुआ रहेगा, सरकमफ्रेंस निकालना है, या तो कभी कभी हो सकता है सरकमफ्रेंस दिया हुआ रहे रेडियस निकालना हो, कभी कभी सरकमफ्रेंस दिया हुआ रहे डायमीटर निकालना हो. तो कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ रहे, यही बेसिक कंसेप्ट से with the help of this basic concept कि circumference divided by diameter is equal to pi, you can find out the value. So let us take some questions from the exercise and try to solve. कुछ क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन 5.6. We'll explain how we can find if 8.8. चलो 8.8 ही लेते हैं. So suppose radius is given 8.8 and you have to find the circumference of the circle. So circumference निकालना है. तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब रेडियस दिया हुआ रहता है उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर. तो अभी सिर्फ आर का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे. सो 2 पाई का वैल्यू हमारे पता है 22/7 एंड रेडियस दिया हुआ 8.8, सो विल पुट 8.8. तो चलिए 8.8 है, 22 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी होता है, ठीक है. सो अगर होता है इट्स गुड, अगर नहीं होता है तो हम लोग कैंसिल आउट ये कर देंगे, ठीक है. सो यहाँ पे 8.8 है, 7 है. सो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करके जो भी आएगा दैट विल बी आंसर. क्योंकि 7 से तो ये कट नहीं करेगा, ये भी कट नहीं होगा, ये भी कट नहीं होगा, 88 भी 7 से कट नहीं होगा, ठीक है. तो डेसिमल में आएगा कोई नहीं, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल ही करेंगे. पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये 44 मल्टीप्लाई 8.8, सो 44 मल्टीप्लाई 8.8. चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8 4 आर 32, सो 2 3 कैरी. Okay, 8 4 are 32 plus 5 is 35. 35. So now again 32 is 2, 3 carry, 35. Okay, so 2, 5 plus 2 is 7, 5 plus 3 is 8, 3. So here before one digit, so before one digit decimal here it will come. So 3 8 7 decimal 2 divided by 7. इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा that much will be the answer. और इसका यूनिट जो भी रहेगा अगर सेंटीमीटर में है so this will also be in centimeter. इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा that will be the correct answer. Okay.
So this is how very simply after putting the required value you can find the circumference of a circle. Okay, normally उतना difficulties रहता नहीं है, वैसा ही value रहता है जो कट जाए normally, ठीक है. But if this type of questions is there, just you can multiply and divide it. That's all. Okay. Understood, Dhananjay? Okay, now suppose you can take or you can tell any other examples from the exercise. Find the circumference of a circle. चलिए कुछ और क्वेश्चन एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. Seven point zero means 7 only. Okay. So suppose here the fifth one of the exercise 14.1. So exercise 14.1 का पांचवा का थर्ड क्वेश्चन जो है that is we have 7.0 centimeter. So 7.0 centimeter means 7 centimeter only. So we know this is the radius given, right? Yes, radius is given. So R is equal to 7.0 centimeter. So circumference will be 2 times pi into radius. So 2 times 22 by 7 into 7, right? 7 cancel out. 22 times 2 is equal to 44 centimeter. So 44 centimeter will be the circumference of the circle. इसका मतलब अगर एक सर्कल है इस तरह से और इसका अगर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल जो है दैट विल बी 44 सेंटीमीटर. ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है. तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर का जो भी सर्कल होगे उसका जो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, दैट विल बी 44 सेंटीमीटर. एंड इसका डायमीटर जो होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है. 14 सेंटीमीटर विल बी द diameter because 2 times the radius. So this is how very easily you can find either radius or diameters or whatever you want to find out as per the requirement of question. Okay. Again my video is not coming. No, now video is okay. Rest of all, my video is coming or not? Kindly check once and tell. अभी भी मेरा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है बाकी सबको? Rest of all quickly tell me. ईसा, युवराज, आर्यन, आयुषी, विद्यावानी logged in with 2 devices. Okay, so quickly check. Okay. So this is how we can do. We can find the circumference when the radius is given. We can find the circumference when diameter is given. And you can solve question number 5, 6. Now suppose, okay, radius you can find out. So find the radius of the circle whose circumference is given. So question number 7 is asking, आपको radius निकालना है when the circumference is given. So circumference is given suppose 264 हम ले रहे हैं 264 सेंटीमीटर जो कि तीसरा क्वेश्चन है 7 का थर्ड क्वेश्चन ऑफ 7 wherein circumference is given and you have to find the radius. Then how can you find out the radius? तो हम लोग को पता है the formula is circumference is equal to 2 into pi into radius. तो अगर हमें radius निकालना है तो what will be the formula? Circumference by 2 pi. Okay, so the formula to find out the radius it will be 2 by 2 pi. क्योंकि ये आके इधर डिवाइड होगा ना, तो radius will be circumference divided by 2 pi. So circumference is 264 centimeter divided by 2 into the value of pi is 22 by 7 into the 2 into pi only, so 22 by 7 only. So this 7 will come up. Okay, so it will become like 264 multiply 7 divided by 2 multiply 22.
तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वेरी सिंपली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑल्सो व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इज गिवन। If you having any doubts you can ask, and rest of all doubts we will clarify in our next class also, so don't worry about it. नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग बाकी जो डाउट्स रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। एंड आई एम गिविंग टुडेज होमवर्क एज अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ओनली। yesterday we have done up to question number 4, right? diameter तक, तो 5, 6, 7 is today's homework. Today's homework is to do question number 5 to 7, 14.1. So exercise 14.1, question number 5, 6 and 7 you have to do. First question, you have to find all the questions, you have to find the circumference only. In one question, diameter is given, one question's radius, one question is related to finding radius when circumference is given, like this. Okay, so I hope you will able to do, otherwise we will revise in our next class also with the doubts whatever you will having, okay. So quickly we will connect for the EVS class. Thank you for the mathematics period and bye bye everyone.